أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمدللہ نماز عید الفطر ادا ہو چکی ہے۔ آج عید کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن بنائے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ ہماری زبان میں ایک کو چھوٹی عید، ایک کو بڑی عید کہا جاتا ہے۔ عید الفطر ایک فریضے کی ادائیگی کے بعد آتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ پہلے ادا کرنے کے بعد فریضہ بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں عید انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو اس ماہ رمضان میں رات میں قیام کرتے ہیں، یعنی تراویح ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ایمان اور ثواب کی نیت رکھنے پر ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عید کے لائق وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ آخری عشرے میں تاک راتوں میں جا کر لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، اور جو ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات کی تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے عید کا دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن میں خشک روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ کھا رہے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آج تو عید کا دن ہے، یعنی عمدہ کھانے چاہیے، تو آپ نے فرمایا عید کو اس کی ہوتی ہے، عید عمدہ کھانے اور عمدہ لباس پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید اس کی ہے جس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور جس کو جنت کی بشارت دے دی گئی، اور ہر مومن کا وہ عید کا دن ہے جس میں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، کہ وہ عید اس کی نہیں ہے کہ جو عمدہ لباس پہنتا ہے یا عمدہ کھانے کھاتا ہے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈر کر اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آج عید کا دن ہے، لیکن عید کی خوشیاں حقیقت میں انہی کو نصیب ہیں
जिन्होंने रोज़े रखे, क़याम किया, तरावी की नमाज अदा की और अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, उन्होंने सदक़े खैरात किए और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। इन वजूहात पर अल्लाह ने उनको आज बशारत दी, उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया गया, उनके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दिया गया। अब हमें देखना है कि हम में से कौन इस मायार पर पूरा उतरता है। आइए देखिए, जो लोग पहले ईद मनाते थे या हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे रस्म व रिवाज जैसे मेले ठेले होते हैं, उनके मौके पर वो इस तरह ईद मनाते थे कि उनमें कोई दुनियावी खुशियाँ ही होती थी, आखिरत का कुछ हिस्सा नहीं होता था। जैसे कि हमारे यहाँ मेलों के मौके पर मैजिक शो होते हैं, कोई रीछ कुत्ते की लड़ाइयाँ होती हैं और इसी तरह कुछ ढोले कहने वाले होते हैं। तो अरब में भी इसी तरह जब वो यौम मनाए जाते थे तो लोग अपने बाप दादा के किस्से बयान करते। हमारे यहाँ भी पंजाबी लोग में वो बाज़ औक़ात ऐसे किस्से बयान करते कि वो जिनके बाप कत्ल हो चुके होते उनकी गैरत को जगाते और वो फिर साल के बाद उनको कत्ल कर देते। इसी तरह ज़माना जाहिलियत में भी होता था, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कैसे ईद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईद उस वक़्त हुई जब उन्होंने अल्लाह की तौहीद की खातिर बुतों को तोड़ दिया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन जालिमों के उनको आग में डालने के बाद आग को हुक्म किया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाम का इलाका भी दिया, औलाद भी दी, नबूवत भी दी, बादशाहत भी दी, हत्ता कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जद्द अमजद बना दिया। उनकी ज़िंदगी के बाद सारी उनकी औलाद में नबूवत को रख दिया। ये उनकी ईद थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ईद थी जब उन्होंने जादूगरों के सामने उनके जादू को अपने असा को फेंक कर वो मोजज़ा जो अल्लाह ने उनको अता किया था, सारे सांप वो निगल गया और उसी हालत में दोबारा आ गया। तो सारे जादूगर उस वक़्त अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और बावजूद फ़िरौन के सूली पर चढ़ाने के भी उन्होंने अपने ईमान को ना छोड़ा। सुबह को वो काफिर थे और रात को जन्नतों के मेहमान बन गए। उस वक़्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली, ये उनकी ईद थी। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ईद उस वक़्त थी जब उन्होंने अपने हवारियों के लिए आसमान से मैदे की दुआ करके मायदा यानी दस्तरखान उतारा था। और हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद कब हुई? जब आप बदर में फ़तह हासिल कर चुके थे। उसके बाद सबसे पहली ईद आई थी कि 313 कुफर के सामने बेसरो सामान अल्लाह की तौहीद की खातिर और इस्लाम की खातिर डट गए थे। अल्लाह ने उन्हें नुसरत भी दी और उसके बाद पहली ईद मनाई गई। और उसके बाद हम मुसलमान इसी सुन्नत को अदा करते हुए किसी बाप का तज़किरा नहीं, किसी और बड़े का तज़किरा नहीं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए ईदगाहों की तरफ जाते हैं। और ये हम इकरार करते हैं कि इस दुनिया में इख्तियार है, इक़्तिदार है, हुकूमत है और किसी का अगर इख्तियार है तो वो अल्लाह की ज़ात है। ये इसके नाम पर ईद है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सब पढ़ो भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुआ से पहले छोटी सी बात है और वह दिल के दुख की। अल्लाह अकबर। इस वक्त पूरी दुनिया फितनों की लपेट में है। आज अल्लाह से मांगने का दिन है। देख लीजिए, रमज़ान का मुबारक महीना भी आया, लोग मस्जिदों में आते हुए तराहते थे और इसी तरह फासले बढ़ा दिए गए, पाबंदियाँ लगा दी गईं, खुशी के उन मौक़ों को छीन लिया गया, मज़दूरों के मुंह से नवाले छीने जा रहे हैं। ये क्या वक़्त आ गया है। और वो अरबों रुपए की रवायत हलाल जिसका काम सही फ़ैसला करना है, मुज़ब्ज़ब लोग हैं। इनसे तो मैं कहता हूँ इन सब को हटाकर हमारे चिलियोट के कबूतरी बाज ही ले जाएं, वो इनसे ज़्यादा चांद देख सकेंगे। वो इतनी दूर कबूतर देख लेते हैं, इनको इतने वसाइल के बावजूद रात 12 बजे चांद नज़र आता है और उस पर भी मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। ये एक किस्म का फितनों का दौर है और इस फितनों के दौर में वो लोग हदें क्या बांधते हैं, मदीने में जाकर जूते उतार लेते हैं और इक़्तिदार से पहले वो दावे करते हैं आफिया सदीकी को लाएंगे। इक़्तिदार पर आते हैं तो आसिया को, गुस्ताखे रसूल को बैर भेज देते हैं। इसी तरह मसाजिद पर पाबंदियाँ लगाकर और मंदिरों की तामीर शुरू कर देते हैं। ये ईमान की हालत नहीं है। रोज़ा ईमान वालों पर फ़र्ज हुआ और ईमान ही की वजह से कबूलियत होती है। ईमान ही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में दाखिले करते हैं। अगर ईमान है सारे अमाल कबूल होंगे। अगर ईमान नहीं होगा, इसी दुनिया में उसको राहत, सुकून, माल, औलाद देकर उसका मामला साफ कर दिया जाएगा। क़यामत में अगर किसी को जन्नत मिलेगी या अजर मिलेगा तो वो ईमान की बुनियाद पर मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। ईमान हमारा आज कामिल नहीं है। अगर हमारा ईमान कामिल होता, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही बुलंद हो। आज हमारे ईमान में फ़र्क आ गया है, छोटे से लेकर बड़े तक और रियाया से लेकर उसके बादशाह तक। अल्लाह हम सबको इस जुर्म अजीम में माफ़ फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। एक महीना तक आप अल्लाह के सामने उसके अहकामात को, उसके फ़राइज़ को पूरा करते रहे। आज मांगने का दिन है, मांगने की शक्ल बनाएं, फ़कीरों जैसा हाल बनाएं, अपने सामने अपनी कमज़ोरियों को रखें और अल्लाह से खूब रो कर गिड़गिड़ा कर मांगें। ये मांगने का वक़्त है। अल्लाह हम सब की गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाए, कमज़ोरियों से दरगुज़र फरमाए, हमारी नेकियों को कबूल फरमाए।